जोहार दोस्तों, अब तक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और मैं अभी जमशेदपुर के एसएसपी कार्यालय के बाहर आया हूं। यहां कुछ लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर लेकर खड़े हैं। जेबीकेएसएस की टीम के लोग खड़े हैं एसएसपी कार्यालय के बाहर। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये लोग के साथ क्या घटना है और ये बैनर को लेकर के क्यों खड़े हैं एसएसपी कार्यालय के बाहर। जेबीकेएसएस के सदस्य हैं और कुछ ग्रामीण भी हैं। तो मैंने जानना चाहूँगा पहले कि क्या प्रॉब्लम क्या है, आप लोग यहाँ एसएसपी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। यहाँ ये 28 अक्टूबर रात की घटना है, मारपीट का मामला है जो एक ग्रामीण व्यक्ति के साथ में हुई थी। तो उसके बारे में ये दीदी हमें बताएंगी। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले हैं? अपना बांग्ला बोलबें? আপনার গ্রামের নামটা কি বলুন? বড় খুরসি গ্রামের নাম। বড় খুরসি গালুডি। গালুডি, হ্যাঁ। কি ঘটনা কি হয়েছে? ঘটনা হয়েছে লক্ষ্মীবার দিনে রাত 4টার সময় পুলিশ যাইছে ঘরকে, ওই সিদিয়ালিও বলছে তোমাদের খোকন কাই গেল, বলছি খোকন নাই কে কাকাই যাইছে না ডিপটি যাইছে, বলছি ওর বাবা বলছি ঘরে আছে। তখন ওর বাবাকে ডাকি বার করলিও, ডাকি বার করাই এরকমের মানে চালা আছে। তো সে চালাটা ঠিনে রোগী পেশেন্ট জ্বর আসিছিল, ডেঙ্গু পেশেন্ট বঠিলিও। আর তাহলে অসুবিধার জন্য ওরা বাইরে করে বসিলিও, এমন বসিলিও বাইরে করে যখন বসিলিও তখন ওরাকে মানে সেই সিদিয়ালিও কোনো ওরা বলছে তোমরা যে আজ 3 দিন আলে কিসের কারণে আলে নোটিশটা দেখাও। তখন বলছে ভোসড়িওয়ালা মাদার চৌদার নোটিশ খুঁজছি বলছে। তখন এক লাত মারলো, এক লাত মারিয়ে তারপরে পুলিশ মারলো। ছোট বাবু এক লাত মারলো। ছোট বাবু এক লাত মারার পরে আমি আগু দিকে মন ডাঁড়ালি। তখন আমাকে পাইরিয়াই বলছেন কেনে মারছো বলছে এরাকে। তখন বলছে রেন্ডি শালি ভোসড়িওয়ালি কোনো বলছে বলতে পাবি না, গালি গালা দিয়েছে। তখন আরেকবার ঘোরাইলো, আরেকবার ঘোরাই আর এইঠিনি মানে চড়াইলো কোনো ওরা এরকম হেলকিয়ে দিল, এরকম হয়ে তখন দেওয়ালে লাগলো। তো ছবার থানাওয়ালা যাই ঘরকে, তখন বলে গার্জেন পাঠাবে, গার্জেন আমি পাঠাই। ফার্স্ট গেল ওখানে মাগলো 50,000 টাকা। তারপরে দ্বিতীয়বার গেল তখন বলে 30,000 টাকা লাগবে। তারপরে আরেকবার গেল তখনও পয়সা লাগবে। আমরা ঘাটশিলায় যাঁচ করালি, বলছে তোমাদের কোনো হয় নাই বলছে কেস ফেস। আর এই 4বারের বেলা মারিয়েছে যাই করে। এ কি গালুডি থানার পুলিশ করেছে? হ্যাঁ, গালুডি থানার ছোট বাবু বটে। ছোট বাবু নামটা জানো? ওর নামটা বাবু আমি জানি না। সন্তোষ দাস। হ্যাঁ, তো আমার কাছে পয়সা নাই, আমি ওদিন ডাক্তার ঘরে ভর্তি করতে পারলি নাই। তারপরে দিনে গায়ে পয়সা নিয়ে করিয়ে আমি ডাক্তার ঘরে লেগে ভর্তি করলি। রাত 12টার পরে উল্টি করতেছিল, ওখানে লেগে ভর্তি করলি। আর জনঠিনে মানে সে ডেঙ্গু পেশেন্টওয়ালা দেখাইছিলি ওইঠিনে তখন আমি প্রাইভেট ডাক্তার ঘরকে লেগলি। আমার ঘরের ওইভার লোক নাই। মঙ্গলবারে ছোটো ছানা নক্তা হয়েছে, বুধবার গুরুবারে রাত 8টার সময় ঘটনা হয়েছে। তো আমি অন্য জায়গায় লিখতে পারলি নাই, আমি প্রাইভেট হসপিটালকে লেগলি পয়সার জ্বালায়। কোথায় হলে আমার রোগ নাই রইলেও হবে, আর সরকারি হসপিটাল লিখবো ওথায় তো একটা বাবুর লোক রইতে হবে। एसएसपी कार्यालय एसएसपी साहब जमशेदपुर की बोल रहे আপনাকে? उन लोग हमको आश्वासन दिए हैं कि जो भी वहाँ पे छोटे बाबू जो भी एसआई है उनको अभी तुरंत निलंबित किया जाएगा और जो भी फैसला है आपके पक्ष में रखा जाएगा। और तो आगे अगर मान लीजिए ये जो इतनी बड़ी घटना है, अभी जो गुरुचरण महतो जी हैं उनकी अभी क्या कैसी हालत कैसी है? এখন কি তার হালত চলবুল করতে পারছে না। এখন আমি কি করে খাবো? গরিব জীবন বলো, কাজকর্ম কোনো করতে পারছি না। আমি কি অবস্থায় পেশেন্টটাকে রাখবো আর আমি খাবো কি করে? গরিব জীবন, আমরা মাটি কুড়িয়ে খাই, পাতপালা তুলি খাই, খেতে বাইদে কাম করি খাই। এখন আমার খেতে বাইদে লোকের নিজের নাই তো লোকের হলেও হবে। জমি জায়গা কম, ভালো চাষ হয় নাই, আমরা কিনে খাই। আর এখন কি করব? আমি পেশেন্টটাকে ওরকম নিয়ে করে আমি পেশেন্ট যত্নাবো না ছোটো ছানার মাটাকে যত্নাবো না আমি ইয়া করবো বলো, কাজ পাট করবো? আমি কি করে খাবো বলো তোমরাই? আমার তো অবস্থা খারাপ, আমি কি করে খাবো আর না খাওয়াবো কি করে? আর আমার বেটাটাকে তো ওরকম আলে মানে ধমকা ধমকি ওরা করে। আর ওরা 2 ভাই আছে, রাস্তায় একদিন টেকিয়েছিল ছানা, তো ডরে রইতে খুঁজে নাই এথায়। তো আমি কি করব? অবস্থা আমাকে বলো তোমরা, সব লোক বুদ্ধি দেও, আমি কি করব ওইটার ব্যবস্থা। আর আমার লোক এখন কাজ পাট করতে পারবে না, ঠেঙ্গা ধরে ধরে চলছে। আর আমি কি করে খাওয়াবো এখন এই বয়সে? तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ग्रामीण है बड़ा खुर्सी गालूडी के रहने वाले हैं, गुरुचरण महतो जी के परिवार के लोग हैं। इनका कहना है कि इनके साथ बड़ा खुर्सी गालूडी थाना के जो संदीप दास बोले ना, संतोष दास जी जो वहाँ थाना के इंचार्ज हैं या कोई भी पद पर है, उनके द्वारा गुरुचरण महतो जी के साथ में मारपीट की जाती है।
और इनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है उनको, और इतनी ज़्यादा मारपीट वो अभी चल फिर पाने में असमर्थ है। ये गरीब परिवार आज बहुत ही डरे सहमे से आज एसएसपी कार्यालय में आए हैं जमशेदपुर में, और इनको ज्ञापन सौंपे हैं कि हमारे साथ न्याय किया जाए। हमारे साथ काकुली महतो जी हैं। तो आप जब एसएसपी कार्यालय में गए तो वहाँ एसएसपी साहब से आप लोगों से क्या बात हुई? जेबी केसेस की टीम के साथ क्या बात हुई? हम एसएसपी कार्यालय में एसएसपी का कार्यालय का अंदर हम नहीं थे। हम ग्रामीण एसएसपी से बात किए। ग्रामीण एसएसपी से यही बात हुआ, उन्होंने अपना डिफेंस में बोल रहे हैं कि अगर उसको मारा चोट लगा था तो पुलिस तो एक तो पर्ची लिख के देगा, उसका गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका ये होगा, ट्रीटमेंट होगा, तभी वो एंटरटेन होगा। हमारा एक बात है, पहले तो उनका अगेंस्ट में केस लॉन्च नहीं ना, सर बहुत कोऑपरेटिव भी हैं। ऐसे बोले हैं कि देखिए जनरली हम लोग पहले केस नहीं लॉन्च करते हैं, सोचते हैं कि काउंसलिंग के द्वारा कोई मैटर अगर हट जाए तो अच्छा है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बोला कि सरकारी हॉस्पिटल में हम पुलिस के अगेंस्ट में बोल रहे हैं तो पुलिस हमको ट्रीटमेंट के लिए पर्ची लिख के देगा। 1 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, हमारा स्थिति कैसा है, रात 8 बजे आप बंगाल का गांव, केरल का गांव, तमिलनाडु का गांव और झारखंड का गांव का ग्रामीणों के बीच एक अंतर है। उन लोग का लाइफस्टाइल में अंतर है, उनको शिक्षा में, उनका अवेयरनेस में। हम गांव झारखंड को ऐसे ही पिछले स्टेट में रखा नहीं गया है। यहाँ का आदमी को कुछ चीज़ समझने में टाइम लगता है, उन लोग डर जाता है, उन लोग पुलिस फेस नहीं कर सकता है। उन लोग कोई ऑफिसर अगर गांव में आता है तो डर से उन लोग घर में घुस जाता है कि भाई हम जाएंगे तो हमको भी पूछताछ करेगा ना, हमको भी एक्यूज्ड बना देगा। झारखंड के लोग कानून की कोई 1% भी जानकारी नहीं है। यहाँ के लोग 1% तो जानकारी नहीं है। इन लोग का फाइनेंशियल कंडीशन सब चीज अगर हम कानूनती देखेंगे, हम संविधान को फॉलो करके ही देखेंगे। हम जो क्षेत्र का हम अधिकारी हैं, पहले वहाँ का कल्चर हमको जानना होगा, वहाँ का इकोनॉमिक स्टेटस जानना होगा, उन लोगों का कस्टम जानना होगा, उसके बाद उनको फाइनेंशियल स्टेटस जानना होगा, तब जाके कार्रवाई होना चाहिए। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट में ही जाके उसको ट्रीटमेंट कराना है। उतना रात को वहाँ से लेके सरकारी हॉस्पिटल जाएगा कैसे? कौन ले जाएगा? एक तो रात में जाके आप क्यों कार्रवाई कर रहे हो एक फैमिली के अंदर? वही तो सबसे बड़ी इलीगल काम है। ऊपर से आपको टच करने का पावर नहीं है, आप उसको जाके लात मार रहे हो। हमारे यहाँ का क्या है, ग्रामीण में जॉब किसके पास है? क्या जॉब है? सब लेबर काटने में टाटा आता है। उसके बाद उसमें दोनों को किया था, सामने था सर। सुनिए, पुलिस एट्रोसिटीज होता है, आदमी डरता क्यों है? पुलिस को डरेगा क्यों? अगर आप फ्रेंडली है तो आपके साथ डरेगा क्यों? कोई, हम लोग तो वीडियो से नहीं डरते हैं, सीओ से नहीं डरते हैं, पुलिस भी एक सर्वेंट है, हम पुलिस को क्यों डरते हैं? वो एट्रोसिटीज करता है, और उनका जो लैंग्वेज है, मुंह का जो भाषा है, वो भाषा का सामने कोई खड़ा नहीं होता है। हर ऑफिसर को बिहेवियर चेंज का एक ट्रेनिंग देना चाहिए कि कैसे आदमी सरल रूप से आपके पास पेश आएगा। तो आज जेबी केसेस के द्वारा आप लोग यहाँ पर एसएसपी कार्यालय आए हैं ग्रामीणों को हक दिलाने के लिए, इनको न्याय दिलाने के लिए। इसके बावजूद अगर मान लीजिए उस पुलिस जो थाना इंचार्ज है, थाना के जो अधिकारी हैं, उनके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है, तब आप लोग क्या करेंगे जेबी केसेस की टीम? फिर हम लोग ऊपर तक जाएंगे, उनके ऊपर भी हम केस करेंगे। आगे की लड़ाई जो भी है, जो भी कार्रवाई है, हम खुद करेंगे। अगर पुलिस ही अगर देश की रक्षा करने के बजाय अगर भक्षक बन जाएगी तो जनता किस पे विश्वास करेगी? कहाँ जाएगी? वो उनको अगर हम अपना हक अधिकार मांगने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि नहीं, हमें गवर्नमेंट का ही कागज़ चाहिए, इनलीगल। अगर हम लोग प्राइवेट वाला नहीं मानते हैं तो ठीक है, अगर प्राइवेट वाला वो नहीं मानते तो मैं उनसे एक सवाल पूछती हूँ, जब कहीं रोड में एक्सीडेंट होता है, अगर कोई भी पेशेंट अगर मर जाता है या कुछ भी जख्मी हो जाता है, उनको तुरंत कोई भी सामने वाला हॉस्पिटल में लेके जाके इलाज किया जाता है, फिर वो कैसे जाके पुलिस को तुरंत कार्रवाई के लिए बोला जाता है? तब पुलिस तो ठीक दौड़ के आती है, वो तब तो हम नहीं बोलते हैं कि ये प्राइवेट है कि ये गवर्नमेंट वाला है बोल के। फिर वो कैसे हम पे सवाल कर सकती है? अगर इस तरह का बैकवर्ड लैंग्वेज अगर वो वर्दी वाले ही करेंगे तो जनता कहाँ जाएगी और किसको सवाल करेगी? किससे अपना हक अधिकार मांगेगी? आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम पिंकी मातो है। पिंकी मातो जी। तो ये आप देख रहे हैं झारखंडियों के साथ में लगातार किसी न किसी तरह की जो अधिकारियों की जो एक दुर्भावना से ग्रस्त होकर के इनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। ये इसका एक आज ताज़ा मिसाल मैं गुरचरण महतो जी को देना चाहता हूँ। आज गुरचरण महतो जी रोजगार से वंचित हैं, अपना परिवार चलाने में असमर्थ हैं। मेरे साथ में एक और ग्रामीण है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि जब आप वहाँ देखे, उनके साथ में ये घटना हुई,
तो आपने क्या सोचा? अब सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामदास मुर्मू है और मैं लगातार जैविक का काम कर रहा हूँ। सबसे पहले सवाल तो ये बनता है कि जब पुलिस द्वारा जब किसी एक निर्दोष ग्रामीण पर मारपीट किया गया तो एक मानवता के आधार पर जब उनको चोट लगा के छोड़ दिया गया, तो ये कहाँ एक पुलिस अधिकारी है, डबल स्टार लेके घूम रहे हैं, तो स्टार का सम्मान कहाँ रहा? जब उसको जख्मी करके वहाँ छोड़ के आ गए तो सबसे बड़ा सम्मान आपका कहाँ रह गया? आप तो ही छोड़ के आ गए। तो ये क्या सवाल जो करता है कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर वैलिड नहीं है तो आपने प्राइवेट हॉस्पिटल को सरकारी क्षेत्र में क्यों रखे हैं भाई? उसको पहले हटा दीजिए ना। आप अगर डॉक्टर को भी आप मैंने उसको आप नहीं समझ रहे हैं कि डॉक्टर मैंने गलत रिपोर्ट दे सकता है, तब जांच कीजिए। और दूसरी बात, अगर सरकारी मैंने प्राइवेट हॉस्पिटल का कोई वैलिड नहीं है तो सारा सरकारी प्राइवेट हॉस्पिटल को आप बंद कर दीजिए ना। प्राइवेट स्कूल रखे क्यों हैं जब आपका कोई काम का नहीं है? हर जगह पर सरकारी हॉस्पिटल खोल दीजिए। अच्छा, ये क्या जो रात में आए, रात में कितने बजे आप बोले? 8 बजे। 8 बजे रात में 8 बजे ये अधिकारी इनके घर पर आते हैं और रात में आकर क्या वो पुलिस अधिकारी क्या नशे में थे या घर पर ही मारपीट किया क्या? सबसे पहली बात तो विदाउट पेपर का किसी भी पुलिस पदाधिकारी को ना तो FIR कॉपी ना वारंट पेपर किसी के घर नहीं घुसना चाहिए। रही बात सवाल कि अगर वो लोग करता है कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करने का आ रहे, इतना बड़ा 12 घंटा का दिन आपने क्या किया? दिन के टाइम आराम से आते, कॉम्प्रोमाइज़ करने का बात है। बाकायदा कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए 2-3 बार पुलिस बुलाए भी था थाना में। हमेशा पैसा का डिमांड करता आदमी दोबारा जाता नहीं है। तो इसी तरह का मामला में मुझे ये है कि इस तरह का अपने पब्लिक को पुलिस परेशान ना करें। और दूसरी बात, अगर आप समाज का सेवा के लिए उतरे हैं, आप एक पदाधिकारी हैं, समाज का आप सही रूप से समाज का सेवा कीजिए और समाज के लोग अनपढ़ है उनको आप कोऑपरेट कीजिए और सही न्याय दिलाने के लिए काम करिए, ना कि किस तरह का पैसा ऐसा मांग करके मामला को बढ़ाने का और समाज से बढ़ाने का आप काम नहीं करिए। हम पुलिस से भी यही विनती करते हैं। और आज SSP के द्वारा जो सर के जो ये किया आश्वासन दिया गया अविलंब निलंबित करने का, ये करें और हम लोगों के सामने ही फ़ोन करके कर दिए कि अभी से उनका तत्काल जो है ना काम पर रोक लगा दी जाए। आशा उम्मीद है उनको जो है काम से रोक लगा दिया जाएगा और बहुत जल्दी उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि ये गुरचरण महतो जी के साथ में जो बड़ा कुर्सी गालूडी के रहने वाले हैं, उनके साथ पुलिस के द्वारा गालूडी पुलिस के द्वारा जो दुर्भावना किया गया, उनके साथ अत्याचार किया गया, उनके साथ मारपीट की गई। मैं इतना दिखाते हुए आपसे विदा लेता हूं। अब तक न्यूज़, जोहार झारखंड, जय झारखंड।